Hello friends, today we'll learn to make बर्फी of gram flour that is बेसन। आज हम आपको इस चैनल में बेसन की बर्फी बनाना सिखाएंगे। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो है 60 grams of ghee. I've taken 60 grams of ghee and about 100 grams of बेसन। इसके लिए for this I have already made a syrup and I had taken 3/4 of water and about 150 grams of sugar। 3/4 भाग पानी और मैंने 150 grams of sugar चीनी को इसमें घोल के सिरप बनाया है। Now I have made this syrup on induction. Again we'll learn how to make it on induction and जो टेम्परेचर रहेगा वो इसका मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। इस सिरप में शुगर के क्रिस्टल्स को तब तक डिसॉल्व करते हैं जब तक कि पूरे क्रिस्टल्स इसमें डिसॉल्व नहीं हो जाते अच्छी तरह से। We'll keep on stirring the mixture till whole of the crystals of sugar are dissolved completely. So now this syrup, you see this syrup is ready. We'll dissolve whole of the crystals. सारे हम इसमें crystals घोल लेंगे अच्छे से और हमारा इस तरह से ये सिरप तैयार हो गया। Now this syrup is ready. Now we'll take another pan. We'll take it out of it. Now I'll take another pan and we'll keep on the induction. Just pause it. And now we'll add about 60 grams of ghee, or you can use your refined also. This whole of the ghee we'll use. And now we'll add this gram flour, which is of 100 grams to it. Whole of the gram flour we'll add to it. पूरा बेसन जो कि हमारा 100 ग्राम था, 100 ग्राम था, वो मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया और इन दोनों को अच्छी तरह से विल मिक्स बोथ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स till they get completely mix up with each other. Now we'll keep on stirring these ingredients जब तक कि दोनों ही अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो जाते and we'll keep on mixing it till this ghee melts. Now one thing friends I like to tell you that यहाँ पे हम लोग घी की जगह पे रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। 60 grams of refined also you can use instead of ghee, but ghee will be much better क्योंकि जब बर्फी बनाएंगे और इसको लास्टली हम फ्रीज करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा बर्फी का। बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूजिंग घी फैट्स की वजह से बहुत से लोग नहीं यूज करना चाहते हैं घी को, तो उस कंडीशन में हम जो है रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारा पूरा जो है बेसन दैट इज ग्राम फ्लावर ब्राउन नहीं हो जाता है। अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। Now we'll keep on stirring till it gets reddish brown. We'll keep on stirring it continuously और ये भी देख so we'll keep on stirring it till this mixture turns reddish brown. एक चीज का और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये मिक्सचर जब हम चलाते हैं तो ये भी देखना पड़ता है कि
हमारा जो मिक्सचर है इट शुड बी इन द लिक्विड फॉर्म, दिस मिक्सचर शुड बी इन द लिक्विड फॉर्म, तभी हमारी बर्फी का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा आता है. विल कीप ऑन stirring this mixture till it turns reddish brown. चलाते रहेंगे. It will take about 10 to 15 minutes, and on induction I am using it on minimum temperature. Now friends, see, now the mixture is turning reddish brown. अब इसका कलर देखिए कितना अच्छा चेंज हो गया, कितना अच्छा कलर इसका आ रहा है. हम इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे और इसमें जो हमने अभी सिरप तैयार किया था वो मिलाएंगे. और मिलाने से पहले पॉज मैंने कर लिया है और एक हम प्लेट लेंगे. दिस आई विल ग्रीस इट विद द घी so that when I'll pour the whole of the mixture over it, then we'll get a plain barfi on it. So now we'll add this syrup which we had already made, but before adding we'll heat it up a little bit also. थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, जो हमने मिक्सचर जो सिरप पहले से ही बना के रखा था. अब हमने उसको थोड़ा सा गर्म भी कर लिया है so that it dissolves completely. The sugar is completely dissolved in it now, ताकि इसकी जो चीनी है अच्छे से घुल जाए और ये मिक्सचर जो है हमारा अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो जाएगा. थोड़ा सा इसको प्री हीट किया मैंने. नाउ we'll add this syrup to this reddish brown mixture. इसको धीरे धीरे से हम डालते रहेंगे जब तक कि हमारा पूरा सिरप इसमें नहीं चला जाए. Now you see we are getting effervescence here. ऐसे बबल्स से उठ रहे हैं, इसका मतलब कि अब हमारी बर्फी बिल्कुल ही तैयार है. You can pause it and also you can add few raisins to it, or you can add almonds also to it as dry fruits, so that children would like it tastes. Now we'll pour this whole of the mixture on this plate, जिसको कि मैंने ग्रीस किया हुआ था. धीरे धीरे से पूरा ही मिक्सचर हम इस प्लेट में पलट देंगे जिसको कि हमने ग्रीस किया हुआ था. Now I had poured the whole of the mixture on this plate, and now to set the plate, to set this mixture, I'll shake a little bit of it so that the whole of the mixture is spread evenly in this plate. And also now I'll keep this plate for about 10 to 15 minutes in the refrigerator so that this barfi is freezed in the freezer. So friends, now I have taken out this plate from the freezer after 10 minutes, and you see that अब देख रहे हैं आप कि मेरी बर्फी बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी है, पूरी सेट हो चुकी है प्लेट में. तो हम इसको अब स्लाइसेस में, पीसेस में कट कर लेंगे. जैसे हम बर्फी को काटते हैं वैसे ही हम इसके स्लाइसेस को काट लेंगे. जितने भी आप खाना चाहते हैं उतने ही पीसेस साथ साथ में काटते जाएंगे. सी, और इसको निकाल के प्लेट्स में रख लेंगे. और सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि ये बर्फ़ी हम तब बनाएं जब हमारे बच्चों को, व्हेन आवर चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो ये जो है बहुत ही अच्छा काम करती है. मेडिसिन से भी ज़्यादा असरदार है ये, and they will recover from cold in no time. Now you'll take these pieces on a plate और ऐसे आप सर्व कर सकते हैं. बहुत ही अच्छी डिलीशियस बर्फी हमने तैयार की है.
and also let me taste it. Wow, friends, believe me, it's really yummy.